Assalamu alaikum class. In this class we are going to discuss an illustration, that is illustration number 5. The question given as trial balance of Western Corporation as on 31st March is as under. आपको कह रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है वेस्टर्न कॉरपोरेशन की 31st मार्च को वो गिवन है। तो आपने जो है एक फॉर्मेट आपके माइंड में बच जाना चाहिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम भी गिवन है एंड डेट भी गिवन है कि कौन से मंथ के लिए आपने जो है वर्किंग करनी है। सो यू कैन सी द ट्रायल बैलेंस ऑफ वेस्टर्न कॉरपोरेशन। आइटम्स आपको गिवन है, कुछ आइटम्स हैं विच आर मेंशनड ऑन डेबिट साइड एंड सम आइटम्स आर मेंशनड ऑन क्रेडिट साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप पहले से ही इन आइटम्स को क्लासीफाई कर लें कि कौन से आइटम्स जो हैं बैलेंस शीट की कैटेगरी में आते हैं एंड कौन से आइटम्स आपके पास इनकम स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी डेबिट और क्रेडिट साइड को देखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दैट विच आइटम इज़ अ बैलेंस शीट आइटम एंड विच आइटम इज़ कंसिडर्ड टू बी income statement item. So first of all we have cash. Cash is a balance sheet item. Then account receivable is also a balance sheet item. Then merchandise inventory, which they mean to say that they are talking about opening inventory. This is basically opening inventory, which is also this is basically income statement item, not a balance sheet item. Then we have supplies expense, which is income statement item. Prepaid insurance is a balance sheet item. Equipment is a balance sheet item. Sales returns is income statement item. Purchases is also income statement item. Salaries expenses is income statement item. Rent expense is income statement item. Advertisement expense income statement item. Delivery expense is also income statement item. Now moving towards the credit side items. Accumulated depreciation on equipment is actually a balance sheet item. Accounts payable is also a balance sheet item. Capital is also a balance sheet item. Sales is income statement item and purchase returns is also income statement item. So first of all it is better that you categorize these items either in a balance sheet or either under the head of income statement. That would create ease for you in further solving the question. स्पेशली जब आपने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं या वर्कशीट प्रिपेयर करनी होती है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। आपको पता होता है कि कौन से बैलेंस शीट आइटम्स हैं, कौन से इनकम स्टेटमेंट आइटम है, या जब आप से क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट डिमांड की गई होती है कि आपने बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। सो इन दैट केस दिस क्लासिफिकेशन या दिस कैटेगराइजेशन, दिस रफ कैटेगराइजेशन विल हेल्प यू अ लॉट. Now moving towards the requirements, the following adjustments are required at the end of the year. कुछ adjustments required हैं. Number A is merchandise inventory on 31st March is valued at rupees 2050. Second जो adjustment आपसे required है वो है insurance expense expired during the year is rupees 110. Expired expenses का बता रहे हैं तो वो आपके पास है 110. Then depreciation expenses of equipment for the year is rupees 100 and accrued salaries at the end of the year is rupees 70. ये 4 adjustments आपने करनी है. Now what is the requirement of question? There are basically 5 requirements. The first requirement is that you have to pass necessary adjusting entries. Then you have to prepare 10 column worksheet. You have also to prepare income statement and balance sheet. You have to pass closing entries and you have to prepare post closing trial balance. Post closing trial balance वो trial balance है जब आप closing entries पास कर लेते हैं और उसके बाद आपने final एक trial balance बनानी होती है जिसे हम post closing trial balance कहते हैं. Means the trial balance which is prepared after closing the books of accounts. So that's why it is known as post closing trial balance. Now first of all we have to pass necessary adjusting entries जो हमारी first requirement है. Number 1 requirement वो यही है कि हमने adjusting entries पास करनी है और जो हम adjustments हैं वो given है already question में. तो इन्हीं statements को follow करते हुए अब हम adjusting entries one by one पास करेंगे. So coming towards the solution of this question. So the solution says that first of all you have to prepare the adjusting entries, you have to pass adjusting entries. So on the top you can write Western Corporation, which is basically name of an organization. After that you can mention adjusting entries and after that you can also mention month, which is March. जब आप एक proper format adjusting entries का बना लेते हैं उसके बाद we have to go with the adjusting entries. So the first adjustment is merchandise inventory on 31st March is valued at rupees 2050. Means they are talking about on 31st March
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च, इसका ये मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट एंडिंग इन्वेंट्री, दिस इज़ द मंथ एंड 31st मार्च। तो यहाँ पे मंथ एंड पे जो हमारे पास इन्वेंट्री होगी वो बेसिकली एंडिंग इन्वेंट्री है, एंड दे आर सेइंग दैट एंडिंग इन्वेंट्री इज़ वैल्यूड एट ₹2050। तो जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हमारे पास डबल साइडेड इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक तरफ है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, या यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं CGS अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री अकाउंट टू CGS अकाउंट मींस आपकी जो आप मंथ एंड पे जो इन्वेंट्री उसमें इंक्रीज़ आ रहा है और दूसरी तरफ जो कॉस्ट आनी थी उन गुड्स को बनाने पे उसमें डिक्रीज़ आ रहा है। अमाउंट्स हमने मेंशन की हैं विच आर ऑलरेडी गिवन टू अस इन क्वेश्चन विच इज़ 2050, एंड इन नरेशन यू विल राइट बीइंग द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री टेकन इनटू अकाउंट, दिस इज़ द नरेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड एडजस्टमेंट, जो सेकेंड एडजस्टमेंट है विच सेज इंश्योरेंस एक्सपेंसेस expired during the year is ₹110। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है मींस प्रीपेड इंश्योरेंस थी जिसमें से ₹110 की इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो चुकी है। ₹110 की जो आपके पास इंश्योरेंस है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो जब एक्सपायर्ड हो चुकी है तो जो आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस थी वो बेसिकली अब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रही है। तो हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस में इंक्रीज़ आ रहा है क्योंकि जो हमने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट की थी और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपायर होता जा रहा है। तो जब वो एक्सपायर होता जाएगा तो वो हमारे एक्सपेंस, जो हमारा एसेट था वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जब एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा तो एक्सपेंस में इंक्रीज़ आ रहा है विच इज़ शोन बाय डेबिट, एंड प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एसेट था हमारा उसमें डिक्रीज़ आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स वाई वी हैव क्रेडिटेड प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अमाउंट इज़ रिटन विच इज़ ₹110 विच इज़ गिवन टू यू इन क्वेश्चन। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर्ड, और बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड भी आप लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज़ depreciation expenses of equipment for the year is ₹100। ₹100 की depreciation आपने कैलकुलेट करनी है इक्विपमेंट पे। तो डेप्रिसिएशन के केस में जो हम एडजस्टमेंट करते हैं डबल साइडेड इफेक्ट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इंक्रीज़ आता है, दैट्स वाई हम इसको डेबिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ आ रहा होता है, दैट्स वाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट से मेंशन करना है, एंड अमाउंट इज़ गिवन टू यू इन क्वेश्चन विच इज़ ₹100। नरेशन में आपने लिखना है बीइंग द अमाउंट ऑफ depreciation on equipment. Now moving towards the next adjustment which is given in question. It says that accrued salaries at the end of year is ₹70। accrued salaries means वो salaries जो कि अभी पे हुई नहीं हैं but these salaries are payable in future. So accrued salaries means they are talking about outstanding salaries case. Amount is ₹70। तो outstanding salaries के केस में जो डबल साइड इफेक्ट क्रिएट होता था, एक तरफ होता था आपके पास सैलरीज एक्सपेंस एंड दूसरी तरफ आपके पास होता था आउटस्टैंडिंग सैलरीज, या जैसे आप कहते हैं सैलरीज पेबल। सो सैलरीज एक्सपेंस इज डेबिट टू सैलरीज पेबल अकाउंट वुड बी क्रेडिट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज यू हैव टू पे योर एम्प्लॉयज़ सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज़ ₹70। अमाउंट पे आपने लिखना है बीइंग द अमाउंट ऑफ सैलरीज पेबल एट द एंड of year. So this was the basic adjustment, or we can say that these were the basic adjusting entries. Now the next thing is that we have to move towards income statement and balance sheet. इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमने बनानी है। जब हमें जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन थी। ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी वी हैड डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैटेगराइजेशंस कर ली थी दैट विच आइटम्स बिलोंग टू बैलेंस शीट एंड विच आइटम्स बिलोंग टू इनकम स्टेटमेंट। तो अब जब हम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे सो वी वुड नॉट फेस दैट मच डिफ़िकल्टी। सो जो हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है वो बेसिकली इन्हीं आइटम्स को देखते हुए बनानी है। इसके अलावा जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं उसको भी देखते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम स्टेटमेंट। टॉप पे आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन करना है, इनकम स्टेटमेंट, एंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च या फॉर द मंथ ऑफ मार्च आप मेंशन कर सकते हैं।
First of all, income statement का pattern, as you already know, that first of all you have to mention your sales, or you can say revenue from sales, which is 14,200 rupees. This is given, this value is given in trial balance. इसमें से आपने सेपरेट किया है सेल्स रिटर्न्स. अगर किसी भी ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न्स की वैल्यू गिवन है तो आपने उसको सेल्स में से माइनस करना होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स का ये मतलब है कि जो आपने सेल्स की थी उसमें से कुछ आइटम्स आपको रिटर्न हो गए हैं, तो सेल्स में कमी आ जाएगी. दैट्स वाई हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल्स रिटर्न्स को सेल्स की अमाउंट में से. जो सेल्स रिटर्न की अमाउंट है दैट इज़ 400 रुपीज़. अब आपने क्या करना होता है, सेल्स में से नॉर्मली हमने CGS को माइनस करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब ये स्टेप हम परफॉर्म करेंगे. CGS हमने कैसे कैलकुलेट करनी होती है. CGS में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज़ 2270 प्लस परचेजेस 9400 माइनस परचेज रिटर्न्स. अगर आपने कोई परचेजेस किए हैं और उसमें से कुछ आइटम्स आपने वापस कर लिए हैं तो उनको आपने माइनस करना होगा, माइनस परचेज रिटर्न्स विच इज़ ₹300. नाउ ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, उसका जो आंसर आपके पास आ रहा है दैट इज़ 11,370 रुपीज़. अब आपने क्या करना होगा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से आपने माइनस करना होता है एंडिंग इन्वेंट्री को विच इज़ 2050 रुपीज़. ये एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है, ये हमारे पास आई है यहाँ से. एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने एडजस्टमेंट में पास कर ली थी, कैलकुलेट कर ली थी, दैट वाज 2050. सो दैट्स वाई जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है ये ट्रायल बैलेंस में तो गिवन नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है. दैट्स वाई हमने वहाँ से पिक कर ली है ये वैल्यू, और हमारे पास CGS की जो फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज़ 9320. अब 9320 जैसे कि हमें फार्मूला बता रहा है कि हमने क्या करना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स में से माइनस करना होता है सेल्स रिटर्न्स माइनस CGS. तो अब हमारे पास जो नेट सेल्स थी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, नेट सेल्स की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 13,800 रुपीज़. इसमें से आपने माइनस करना होता है CGS की वैल्यू को विच इज़ 9320 रुपीज़. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 4480. इसके बाद हमने माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को. अब ऑपरेटिव जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपने ट्रायल बैलेंस से उठाने हैं, ट्रायल बैलेंस से लेने हैं. सैलरीज एक्सपेंस ये आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1570. आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपके पास सैलरीज एक्सपेंस गिवन है 1500. यहाँ पे है 1570. अब यहाँ पे 1570 क्यों है, इन्होंने ये सैलरीज एक्सपेंस में ट्रायल बैलेंस की वैल्यू को लिया है प्लस जो हमने एडजस्टमेंट्स पास की थी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो हमने एडजस्टमेंट्स पास की थी तो यहाँ पे भी हमारे पास था सैलरीज एक्सपेंस विच वाज ₹70. तो इन्होंने क्या किया है, ट्रायल बैलेंस के सैलरीज एक्सपेंस को यहाँ एडजस्टमेंट के सैलरी एक्सपेंस के साथ ऐडअप करके आपके पास फाइनल उन्होंने वैल्यू आपको लिख के दी है सैलरीज एक्सपेंस की विच इज़ 1570. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखें सैलरीज एक्सपेंस 1500 और ये सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के बाद आप एंड में लिख लें आउटस्टैंडिंग सैलरीज और उसके सामने लिख लें 70 रुपीज़, तो तब भी बात वही है. देन सप्लाईज एक्सपेंस है आपके पास 80 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 130 रुपीज़, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं 840 रुपीज़, इंश्योरेंस एक्सपेंस है ये बात कर रहे हैं वो इंश्योरेंस जो कि एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, तो वो आपके पास है 110 रुपीज़. 110 रुपीज़ ये एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, प्रीपेड की बात नहीं कर रहे, जो एक्सपायर हो चुकी है उसकी बात करें क्योंकि जो एक्सपायर हो चुकी है वो बेसिकली अब आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी है. दैट्स वाई आपने लिखना है इंश्योरेंस एक्सपेंस और अमाउंट आपने लिख लेनी है 110 रुपीज़. देन रेंट एक्सपेंस 480 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि हमने एडजस्टमेंट से उठाई है विच इज़ 100 रुपीज़. ये सारे एक्सपेंसेस ऐडअप करने के बाद हमारे पास जो टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस आ रहे हैं विच इज़ 33
ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस की। अब आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को, जो कि विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ नेट इनकम विच इज़ ₹1170. So this is basically the value of your net income. Now next we have to prepare balance sheet. बैलेंस शीट में सेम पैटर्न आपने ड्रॉ करना है, सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है। देन ऑन द टॉप यू हैव टू मेंशन योर एसेट्स, करंट एसेट्स एंड देन फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। दे आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मींस एंडिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपके पास था ₹100 उसकी बात करें, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट कंसिडर होता है। दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास है इक्विपमेंट्स की वैल्यू आपने ट्रायल बैलेंस ली है, और इक्विपमेंट्स में से हम क्या करते होते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते होते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने माइनस की है विच इज़ ₹300। तो 700 में से 300 जब आप माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 400। अब फिक्स्ड एसेट्स को और करंट एसेट्स को आपने एडअप करना है, तो टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 5510। अब बात आती है लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ में आपके पास है अकाउंट पेबल जो कि हमने ट्रायल बैलेंस ये वैल्यू ली है 1400, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज बेसिकली जो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास की थी वहाँ पे हमारे पास सैलरीज पेबल थी ₹70, तो उसको हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करना होता है। समरी में मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस किया था क्लास में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज या सैलरीज पेबल को आपने लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करना होता है। इन दोनों को भी हमने एडअप कर लिया, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं ₹1470। उसके बाद आते हैं ओनर इक्विटी की तरफ। ओनर इक्विटी में कैपिटल की वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है विच इज़ 2870। उसके साथ आपने ऐड करना होता है नेट इनकम को। नेट इनकम की वैल्यू आपने ली है इनकम स्टेटमेंट से विच इज़ 1170। तो आपके पास जो टोटल ओनर इक्विटी है दैट कम्स टू बी 4040। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ हैं एंड टोटल ओनर इक्विटी है, इनको एडअप करना है एंड इट विल गिव यू 5510 टोटल इक्विटीज़। सो आपका जो एसेट साइड it is matched with your liability and owner equity side. So our balance sheet is also ready. Next हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट एंड क्लोजिंग एंट्रीज को, बट बिफोर दैट you should be clear about this income statement and balance sheet.